Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the predator-prey relationship is the interaction between two species and their consequent effect on each other. In this relationship, the predator species feeds on the other species called as the prey species. Prey may be of a plant or an animal, and therefore predator is either a herbivore or a carnivore. Respectively, some examples of predator and prey are lion and zebra, bear and fish, fox and rabbit, bear and berry, rabbit and lettuce, grasshopper and leaf. Predator and prey share the same environment and they therefore tend to evolve together. Now, to ensure that they get to eat and survive, the predators have evolved various means like speed, stealth, camouflage, and a good sense of smell, sight, or hearing, immunity to the prey's poison, and produce poison to kill the prey. In turn, prey to have evolved adaptations that ensure that their safety and protection. Some of these adaptive features are speed, camouflage, a good sense of smell, sight, hearing, thorn, poison to spray when approached or bitten. An example of camouflage in the snowy environment, the polar bear invite to avoid being noticed. Another example is Galapagos tortoise, which feeds on the branches of cactus plants that also grow in Galapagos Island. On one of the islands where long-necked tortoise live, the branches are higher off the ground. On the other hand, where short-necked tortoise live, the branches are lower down. The cacti, which are the prey, may have evolved high branches so that the predators cannot reach them. सो इन द लाइट ऑफ दिस द गिवन पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जो भी हमने पढ़ा जो कि प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप के बारे में है, इसी सबसे रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है इन विच द असर्शन इज गिवन दैट प्रेडेटर एंड प्रे डू नॉट इवॉल्व टुगेदर as the reason is as they share the same environment they tend to face extinction. So this is the assertion and reason that is given over here, and we have been given with 4 options to solve this question. So yes, let's try to solve this question. And हमारा यहाँ पे key concept होगा predator prey relationship. प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एक किसी भी इकोसिस्टम में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. एक वो जो प्रेडेटर कहलाते हैं, जो फीड करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे, एंड एक वो जो प्रे होते हैं दैट आर गोइंग टू गेट हंटेड डाउन बाय अदर ऑर्गेनिज्म. तो 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन ऑल द इकोसिस्टम. सारे इकोसिस्टम्स में क्योंकि इंटरेक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं टू सर्वाइव और टू सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जिनमें कुछ फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए भी दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. फूड के लिए डिपेंड करना एक दूसरे पर, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए भी गए हैं, जैसे कि रैबिट है. रैबिट and lettuce relationship. Lettuce over here can act as an prey क्योंकि इस पर फीड करता है rabbit. तो rabbit will over here be an predator. rabbit हमारा यहाँ पे predator होगा और वहीं पे lettuce prey होगा. predator और prey दोनों ही एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं, तो दोनों एक साथ इवॉल्व करते हैं. बिकॉज देखिए, अगर प्रेडेटर होगा, उसको फूड चाहिए, तो फूड के लिए वो फिर कोशिश करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके. एंड इसी केसेस में अपने आप को सेफ करने के लिए जो प्रे होगा वो भी कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ग्रो करेगा, राइट. सो ये कुछ प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस यहाँ पे प्रे अपने लिए कर सकता है. वहीं पे जो प्रेडेटर है वो अटैकिंग के लिए, फॉर अटैकिंग और फॉर हंटिंग द प्रे दे कैन इवॉल्व. सो दोनों ही एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं, तो दोनों इवॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन है. यहाँ पे दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो येस, अगर इनमें से कोई भी एक स्पीशीज़ लेट से ख़त्म हो जाता है, लेट से प्रे ख़त्म हो जाता है, तो प्रेडेटर भी फिर नहीं रहेगा. ख़त्म होने से मतलब है एक्सटिंक्ट होना.
अगर ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो फिर प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि अगर प्रे नहीं है तो फिर प्रेडेटर खाएगा क्या, देयर इज़ नो फूड अवेलेबिलिटी, तो इन दैट केस द प्रेडेटर कैन ऑल्सो गो एक्सटिंक्ट। नाउ इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेडेटर और प्रे दोनों इवॉल्व नहीं होते एक साथ, ये हमें असर्शन में दिया हुआ है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि प्रेडेटर और प्रे एक साथ ही इवॉल्व करते हैं बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम एनवायरमेंट। और रीज़न की बात करें तो एज दे शेयर द सेम एनवायरमेंट दे टेंड टू फेस एक्सटिंक्शन। हर केस में ऐसा नहीं होगा, अगर एक भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है तब ही दूसरी जो प्रेडेटर हो या प्रे वो फिर एक्सटिंक्ट हो सकती है। अदरवाइज देयर विल नॉट बी एक्सटिंक्शन जस्ट बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम एनवायरमेंट। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन टेंड टू बी false. Hence, option D will be the final answer. I hope you understood well. Best of luck.